Dear students, welcome back to your e-classes of social science. And the conditions are was you already know that this is your class 10th, and so far we have not started our portion properly, our course properly. So you need to be more focused from today. You must go through the videos which are being uploaded onto your school's YouTube channel. Go through them, not the newer ones but the older ones also. We started our classes from March itself, so from those videos go through all videos several times and try to grab everything, every information, every subject, every topic which is taught by the teachers. So I suggest you, please don't think that the videos are older. No, those videos are also very important for you all. And today we are going to start again our classes, social science. So some lessons we have done in our past classes, but today we are going again to start from the very first chapter of your social science, and that is resources of India. Yes, resources of India. What do you mean by resources? Resources means all those facilities, all those products, all those things which are provided by nature as gift to humans. Those are resources like soil, water, forest and wildlife. These resources are provided by nature. Alright. So these are to facilitate human satisfaction. ओके हम सेटिस्फाई हो, हमारा जितनी भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कुछ रिसोर्सेज नेचर ने हमको प्रोवाइड किए, गॉड ने हमको प्रोवाइड किए, एंड दोज आर नॉन एज रिसोर्सेज. एंड विच आर द रिसोर्सेज? हियर इज़ अ वैगन व्हील गिवन. नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, लैंड, सॉइल, वाटर, forest, wildlife, minerals and power. So these are some natural resources given here. So if we talk about what resources, in other words, anything which fulfills human demands or wants are called resources in short. So for example, water is a resource as it is used for drinking, irrigation, cleaning purpose and cooking also. In the same way, all those things which fulfill human needs are known as resources. Resources make human life very happy, very simple. और जो पहले के लोग होते थे वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट होते थे एंड नेचर की ही चीज़ें वो यूज़ करते थे उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरे करने के लिए. एंड टुडे वो कंट्रीज़ डेवलप कही जाती है. दोज कंट्रीज़ आर नॉन एज डेवलप्ड कंट्रीज, आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव यूटिलाइज्ड देयर नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज इन अ बेटर वे. अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज को जिसने बेटर वे में यूज़ किया है वो आज डेवलप हो गई है और डेवलप कंट्री कही जाती है. एंड we must understand that any element of the nature is a resource when it helps to fulfill human needs. So man can convert any substance or material into resource. जो भी मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज हमको दिए हुए हैं प्रोडक्ट को हम हमारे रिसोर्सेज में यानी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं. सो टू फुलफिल हिज नीड्स मैन कैन मेक द natural elements useful and valuable by his intelligence, skills and technical knowledge. With this process the natural elements becomes resources. In short, we can say natural elements become resources when man modifies them to be more useful and valuable. Suppose we are take an example of a tree. If we cut down the tree, if we don't cut the tree and just eat the whatever the fruits and other things are there which we can eat, which are edible, so that is a natural resource to us. And if these resources, if this tree is cut down and उसकी
लकड़ी से हम फर्नीचर बनाएं, दैट इज़ ऑल्सो रिसोर्स फॉर अस. सो दिस नेचुरल रिसोर्स, यानी कि हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करके उसको हमारे अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड दैट इज़ अ स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैन विल हेल्प टू मॉडिफाइड. हम मॉडिफाई करके उस रिसोर्सेज को हमारे वे में बना सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन यूज़ इट ईजिली, ताकि हमारी जितनी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और हमारी जो लाइफ है वो ईजी हो जाए. लाइक प्रिमिटिव मैन, जो पहले के लोग थे, देयर लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उनके पास उतना स्किल नॉलेज नहीं हुआ करता था. एंड टुडे आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने स्किल सीखी है, वी हैव डेवलप्ड इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड दैट्स वाई रिसोर्सेज को हम बेटर वे में यूज़ कर पा रहे हैं. सो नेक्स्ट पेज, classification on the basis of ownership. Now this particular resources can be classified into different categories, like on the basis of ownership, on the basis of availability, distribution and its uses. यानी कि हम इन रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एंड व्हाट आर दिस कैटेगरीज? फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. सो पर्सनल रिसोर्सेज like property, health, etc. Your health is also your resource, you know. पहला सुख निरोगी काया, आपने कई बार सुना होगा. पहला सुख निरोगी काया, यानी कि आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो वो आपका पहला सुख है. सो दैट इज़ योर रिसोर्स ऑल्सो, वो हमारा रिसोर्स. अगर अच्छी हेल्थ है, सो दैट इज़ योर रिसोर्स. योर प्रॉपर्टी, विच कैन बी योर house, which can be your land, which can be your bikes and also whatever your property you have, movable or immovable, is your resource. So on the basis of ownership हम बोल सकते हैं पर्सनल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, सिर्फ हमारे हैं, प्राइवेट हैं, पर्सनल है. देन सम नेशनल रिसोर्सेज आर देयर, लाइक नेशन की वेल्थ, जितनी धन दौलत देश के पास है, मिलिट्री पावर जितना है, देशभक्ति जितनी है, पेट्रोटिज्म. सो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में आती है. दैट मीन्स इट इज़ अ रिसोर्स फॉर होल नेशन. वर्ल्ड रिसोर्सेज, दैट मीन्स सम फैक्टर्स और थिंग्स विच आर रिसोर्सेज फॉर होल वर्ल्ड, लाइक फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. यानी पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें जो हमारे उत्थान यानी कि हमारे अच्छे के लिए यूज़ की जा सकती है. दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर वर्ल्ड रिसोर्सेज. सो ऑनरशिप, personal, national, world, these three type of resources are there on the basis of ownership. Now let's move on to the next one, that is the classification on the basis of availability. अब resources को हम availability यानी कि कितना वो हमको मिलता है, कहाँ पर वो मौजूद है, कहाँ पर नहीं है. कुछ जगहों पर वो मौजूद होता है, कुछ जगहों पर मौजूद नहीं होता है. या जगह की हम बात नहीं करते, हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, कितनी आसानी से हमको मिल सकता है, कितनी आसानी से नहीं मिलता है. क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पेट्रोलियम, जो एक बार हम ज़मीन से निकाल लेंगे, देन वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलप होता है. पेट्रोलियम जो होता है ज़मीन के अंदर, वो मिलियंस ईयर्स में डेवलप होता है. सो कुछ चीज़ें लाइक वाटर, इट इज़ अवेलेबल वेरी इन अबंडेंट. सो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ें अवेलेबल है, कुछ चीज़ें कम मात्रा में अवेलेबल है. So that's why we can classify on the basis of availability also. Number one is renewable, second is non-renewable, third is recyclable, fourth is inexhaustible. Renewable energy are those renewable resources are those resources जो हमेशा रिन्यू हो सकती है. लाइक एयर कभी ख़त्म नहीं होगी. It can be water also, and many things which can be renewed, जो ख़त्म होने की जिसकी संभावना कम है. Then non renewable, for example पेट्रोल, कोल, डायमंड्स एक्सेट्रा. अगर हम इन चीज़ों को ज़मीन से निकाल लेंगे तो ये बनेगी तो सही, लेकिन इतने समय में जब तक ह्यूमन काइंड को वेट करना पड़ेगा फॉर मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ
ईयर्स हमको वेट करना पड़ेगा उसके रिन्यूएशन के लिए. सो दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल. आई एम गोइंग वेरी फास्ट एंड वेरी clear. I don't want to read the lines and exact meaning. I don't want to give because we have less time. So जल्दी जल्दी एंड इन हिंदी आई एम एक्सप्लेनिंग यू ताकि आप उसको अच्छी तरह से ग्रैब कर पाएँ, अच्छी तरह से समझ पाएँ. Because we are not having our regular classes, and in regular classes whatever the medium, Hindi or English or whatever the medium is, in which I explain you, it is easy to grab. But online classes में as we go very it is not suitable, it is not comfortable for the students. That's why I'm going in Hindi. So I hope that you will study it. सो रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकती है आसानी से, नॉन रिन्यूएबल जो वापस से रिन्यू नहीं हो सकती है आसानी से, होगी बट इट विल टेक लैक्स ऑफ ईयर्स. देन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज है विच कैन बी रिसाइकल्ड. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ चेयर मेड अप ऑफ आयरन एंड उस पर जंग लग गई है, टूट गई है. आफ्टर दैट पर्टिकुलर चेयर कैन बी मेल्टेड बैक इनटू लावा, सॉरी नॉट लावा. अगर हम आयरन को पिघलाते हैं तो जो पिघला हुआ आयरन होता है, मेल्टेड आयरन, उसमें चेंज कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी कैन गिव एनी अदर न्यू शेप वी वांट. यानी कि उस पर्टिकुलर आयरन से उसको हम रिसाइकल करके उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट वापस से बना सकते हैं. सो दिस कैन बी रिसाइकल्ड. कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, silver. So such metals which can be reused after recycling are known as recyclable resources. Inexhaustible, ऐसी एनर्जी, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, जो सन है, सन से कंटिन्यूसली हमारे पास में सोलर एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ रेज, हीट. सो वो कभी ख़त्म नहीं होगा कितना भी हम यूज़ कर लें. एंड देन वाटर, बिकॉज 71% जो हमारे एरियाज़ पर है, जो पूरे पृथ्वी पर है, वो वाटर से कवर्ड है. सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग इशू कि वो कभी ख़त्म हो जाएगा. सो इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल. गॉट इट? ऑलराइट. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, classification on the basis of uses also we will go through. Till then, thank you.